Welcome to our video lecture. So students, what we will do today? Yes, we will do English. Okay. So as you all know that we have completed lesson number 5, explanation part. Yes or no? So today we will start our exercise part. So all of you take out your tulip. सबको ये tulip में complete करना है. Okay. So all of you take out your tulip and open page number 35. This one. ये वाला पेज सब ओपन करेंगे. Okay. This one. Here we will do 3 questions today. Question number 1, question number 2 and question number 3. Okay. So first we will start from question number 1. सबका ध्यान बोर्ड पे. सबको रीडिंग भी करने आनी चाहिए अभी. Yes or no? So all of you look at the board, all of you. So all of you look at the board. Okay. Now we will do question number 1. Okay. सबका ध्यान बोर्ड पे. Question number 1 क्या है students? Choose the correct answer and fill in the blanks. Okay. Choose the correct answer and fill in the blanks. Question 1. All of you look here. The donkey slept in the dash. Donkey कहाँ पे सोता था students? And your options are stable, barn, shed, house. So come on, tell me. Abu and the donkey इस story में donkey कहाँ पे सोता था? The donkey slept in the dash. Stable. Stable is your correct answer. No, stable में तो horse सोते हैं. Yes or no? Barn, B-A-R-N, barn. Yes, barn is your correct answer. Okay. So all of you tick the barn and write here the spelling of barns. B-A-R-N. Done. Next question. The donkey smelled dash around him. Donkey ने अपने आसपास जब वो बार से बाहर निकला तो उसने क्या स्मेल किया था? Okay? And your options are food, fire, flower, water. Food, क्या उसने डोंकी ने फूड को स्मेल किया था? वहाँ पे फूड बन रहा था? No. Fire, F-I-R-E, fire. Yes, fire is your correct answer. आग लगी थी ना? अब्बू के घर में आग लगी थी. विंडो से ब्लैक स्मोक बाहर निकल रहे थे. Yes or no? तो डोंकी ने क्या स्मेल किया था स्टूडेंट्स? फायर, F-I-R-E, फायर. So all of you tick the option fire, F-I-R-E, fire, and write here in this blank F-I-R-E, fire. Remember, you have to write in cursive only. Okay. Next question. Abu was a dash. Abu क्या था स्टूडेंट्स? टेलर, वीवर, policeman, carpenter. Come on, tell me. Abu was a tailor. क्या वो टेलर था? No. Weaver? Yes. आप अपनी इस स्टोरी में लेसन नंबर 5 में स्टार्टिंग में ही आप रीड करना. आपको ये सेंटेंस दिखेगा. अबू वॉज अ विलेज वीवर. अबू विलेज वीवर था. ओके. पोलिसमैन भी नहीं था एंड कारपेंटर भी नहीं था. सो व्हाट इज योर करेक्ट आंसर? वीवर. W-E-A-V-E-R. Weaver. Done? Good. Now next. Abu was dash when the donkey disturbed him. अबू क्या कर रहा था जब डोंकी उसको डिस्टर्ब कर रहा था बार बार डोर को किक करते हुए? तो अबू क्या कर रहा था? एंड योर ऑप्शंस आर sleeping, eating, drinking, talking. Now come on, you only tell me students. जब डोंकी अबू के डोर यानी कि दरवाजे को किक मार रहा था जोर जोर से, तब अबू क्या कर रहा था? स्लीपिंग. क्या वो सो रहा था अबू? यस ऑफ कोर्स ही इज स्लीपिंग. रात में ही तो फायर आग लगी थी ना स्टूडेंट्स. वहाँ से तो ब्लैक स्मोक निकल रहे थे विंडो में से. इसीलिए डोंकी बार बार उसको डिस्टर्ब कर रहा था ना, क्योंकि वो उठ के बाहर आ जाए. कौन? अबू बाहर आ जाए. तो अबू क्या कर रहा था? अबू वॉज स्लीपिंग.
Abu was sleeping when the donkey disturbed him. Okay, वो eating खाना भी नहीं खा रहा था, ड्रिंकिंग भी नहीं कर रहा था, एंड टॉकिंग भी नहीं कर रहा था. अबू सो रहा था. एंड योर करेक्ट आंसर इज स्लीपिंग. So all of you take this option sleeping and write here the spelling of sleeping. S-L-E-E-I-N-G. Now last questions. अबू thanked his dash for saving his life. अबू ने किसको थैंक किया, थैंक यू बोला था अबू ने? And your options are neighbors, family, sisters, uncle. So come on tell me, अबू ने किसको थैंक यू बोला था? चलो, जब आग लगी थी तब कौन कौन हेल्प करने के लिए आए थे? आसपास के लोग, यानी कि नेबर्स. यस और नो? नेबर्स आए थे ना अबू की हेल्प करने. सो व्हाट इज योर करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट आंसर क्या है इसका? वेरी गुड, नेबर्स. सो ऑल ऑफ यू टिक द ऑप्शन नेबर्स. राइट हियर इन दिस ब्लैंक्स नेबर. NEIGHBOURS, neighbors. See, Abu thanked his neighbors. So done. Here we have completed question number 1. आपको भी मैम के साथ ही ट्यूलिप्स में कंप्लीट करना है ये. ओके? So students, we have completed question number 1 of exercise part. Yes or no? So now we will do question number 2 and question number 3. Okay? That is given in your tulip only. आपकी ट्यूलिप में पेज नंबर 35 में हम ये कर रहे हैं. ओके स्टूडेंट्स? ओके, गुड. सो ऑल ऑफ यू लुक एट द बोर्ड. सबका ध्यान बोर्ड पे. सो फर्स्ट क्वेश्चन. So question number 2, put a right if the sentence is correct or a wrong if it is wrong. Means it is right or wrong. Okay? So all of you look here. First question, Abu was a farmer. Is it true or false? Abu was a farmer. क्या अबू फार्मर था? No. Abu was a village weaver. Abu was not a farmer. तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? क्रॉस मार्क. क्वेश्चन नंबर 1, अबू वॉज अ फार्मर. क्रॉस मार्क, रॉन्ग आएगा. आपका आंसर रॉन्ग है. अबू वॉज अ विलेज वीवर. ही इज नॉट अ फार्मर. ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोंकी डिसलाइक्ड अबू. डोंकी को अबू बिल्कुल पसंद नहीं थे. इज इट ट्रू और फॉल्स? ऑफ कोर्स फॉल्स, बिकॉज डोंकी को तो अबू पसंद था ना. डिसलाइक्ड यानी कि नापसंद. ओके? डिसलाइक्ड यानी कि नापसंद. बट इट इज रॉन्ग. अबू लाइक, डोंकी लाइक्ड अबू. ओके? अबू, डोंकी को अबू पसंद था. डिसलाइक नहीं, लाइक. यहाँ पे डिसलाइक है तो हम क्या करेंगे? व्हाट इज योर आंसर? रॉन्ग. डन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डोंकी नॉक्ड एट द डोर. डोंकी ने डोर को नॉक किया था. इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट राइट और रॉन्ग? Yes, what is your answer? Of course wrong. डोंकी ने नॉक नहीं किया था. डोंकी ने तो किक मारी थी ना. डोंकी क्या कर रहा था? डोर को किक कर रहा था ना स्टूडेंट्स. ये नॉक नॉक थोड़ी ना कर रहा था. डोंकी के पास थोड़ी नॉक नॉक करेगा डोंकी. डोंकी ने किक लगाई थी जोर से डोर में. ओके? यहाँ पे नॉक लिखा हुआ है. सो व्हाट इज योर आंसर? रॉन्ग. नेक्स्ट क्वेश्चन, the donkey stopped kicking when Abu screamed at it. Is it right or wrong? जब अबू, स्क्रीम यानी कि शाउटेड लाउडली, जब अबू ने जोर से चिल्लाया अंदर से, that who is it? What's the matter? कौन है बाहर? तब डोंकी ने किक करना स्टॉप कर दिया था. Is it right or wrong? What is your answer? Yes, it is right. क्योंकि जब अबू चिल्लाया था जोर से डोंकी पे, ठीक है, तब डोंकी ने किक करना स्टॉप कर ही दिया था ना. क्योंकि डोंकी को लगा कि अबू अभी उठ गया है. ठीक है, इसीलिए उसने स्टॉप कर दिया था. लास्ट क्वेश्चन, इन द एंड अबू थैंक्ड द डोंकी. यस, लास्ट में अबू ने डोंकी को थैंक यू बोला था. यस और नो? इज इट राइट और रॉन्ग? Yes, it is right.
क्योंकि सच में जो अब्बू की लाइफ बचाई है, ठीक है, वो कौन था? डोंकी तो था। अगर डोंकी किक नहीं करता ज़ोर ज़ोर से डोर को तो अब्बू थोड़ी ना उठ जाता, और अब्बू उठ के बाहर नहीं आता तो उसको वो फायर दिखती ही नहीं अपने घर में। नेबर्स ने भी हेल्प की थी जब अब्बू चिल्लाया था फायर फायर हेल्प हेल्प करके, बट सबसे पहले हेल्प किसने की थी? डोंकी ने की थी ना, इसीलिए अब्बू ने डोंकी को थैंक यू बोला था। ये राइट है। ओके स्टूडेंट्स, here we have completed question number 2. Now question number 3. Rearrange the letters to make words from the story. अभी इस स्टोरी लेसन नंबर 5 अब्बू एंड द डोंकी स्टोरी में से थोड़े से वर्ड्स है जो हमें रीअरेंज करना है लेटर्स को। इन लेटर्स को हमें रीअरेंज करके सही वर्ड बनाना है। ओके, सो लुक हियर, HTOLCES, तो इससे क्या बनेगा? यस, बहुत ईजी है, देखो CLOTHES, क्लोथ्स। कौन सा वर्ड बना? CLOTHES, क्लोथ्स। कम ऑन, राइट योर आंसर। सही वर्ड लिखेंगे हम यहाँ पे, CLOTHES, क्लोथ्स। डन। नेक्स्ट MEKSO, तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स? ये इस चैप्टर में से ही वर्ड होगा। ये क्लोथ्स इस चैप्टर में है, तो अभी क्या बनेगा ये? यस, दिखा, मैम दिखाते हैं, SMOKE, स्मोक। स्मोक यानी कि धुआं। SMOKE, स्मोक। स्मॉल लेटर है सभी, SMOKE, स्मोक। नेक्स्ट DASEV, क्या बनेगा इससे? इसी चैप्टर में से ये वर्ड था, सेव्ड। SAVED, सेव्ड। SAVED, सेव्ड। सी SAVED, सेव्ड। SAVED, सेव्ड। ओके, नेक्स्ट इज UNLDBSE, क्या बनेगा इससे? देखो, BUNDLES, बंडल्स। BUNDLES, बंडल्स। ओके, BUNDLES, बंडल्स। लास्ट वन ATPENCIE, क्या बनेगा इससे? यस, स्पेलिंग ऑफ कौन सा वर्ड बनेगा इसमें हम जब रीअरेंज करेंगे तब? पेशेंस। सी PATIENCE। अभी मैम फिर से दिखा रहे हैं आपको पेशेंस का स्पेलिंग। पेशेंस, PATIENCE, PATI, फिर यहाँ पे ENCE, पेशेंस। कौन राइट? PATIENCE, patience. Done students? Here we have completed question number 3 also. You have to complete both question 1, तीनों question 1, question 2 and question 3 in your tulips. यहाँ पे आपको complete करना है exercise part में, okay? और ये याद भी रखना है आपको। अगर आपको ना आए तो 2-3 टाइम्स रीड करो इसको, या फिर आपकी रफ नोटबुक में ये लिखो, 1 टाइम बाय हार्ट लिखो, क्वेश्चन खुद लिखो, आंसर बाय हार्ट रीड करके लिखो, फिर आपको सब कुछ याद रह जाएगा। ओके स्टूडेंट्स? So students, we have completed exercise part, yes or no? So now take out your tulip and turn your page, that is page number 36. Okay? अभी हम grammar part करेंगे. Okay? So look at the board, all of you.
आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन्स। स्टूडेंट्स आर्टिकल्स कहाँ पे यूज होता है, कैसे यूज होता है? जो नाउन होते हैं ना, नेमिंग वर्ड्स, उसके पहले यूज होता है आर्टिकल्स। द टू indefinite articles in the English language are a और a and n। अभी जो आर्टिकल्स इंग्लिश लैंग्वेज में मेन 2 आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है? कौन से 2 होते हैं स्टूडेंट्स? a and n। ये आपने HKG में फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी ये आपने सीखा था, ये सर नो, a n और द का कैसे यूज करते हैं, ओके? The article n is used with words which begin with a vowel। Yes, vowels यानी कि स्टूडेंट्स a, e, i, o, u। कोई भी वर्ड अगर a से स्टार्ट होता हो, फॉर एग्जाम्पल स्पेलिंग ऑफ एप्पल, APPLE, एप्पल, तो एप्पल में a यूज हुआ ना, सबसे पहला लेटर वर्ड का a, तो a के आगे क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? n, n एप्पल, AN एप्पल। वाई n एप्पल? ए एप्पल क्यों नहीं है स्टूडेंट्स? क्योंकि वो एप्पल वर्ड जो है वो वॉवेल ए से शुरू होता है, तो इसका मतलब कि वो वॉवेल, तो यानी कि हम एन एप्पल करेंगे, ए एप्पल नहीं। द लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू आर नोन एज वॉवेल्स। सी आया ना? ऑल द अदर लेटर्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट्स। यस, अभी जो ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स में और कौन कौन से हैं? बी, सी, डी, एफ, जी, ये सब क्या है स्टूडेंट्स? कॉन्सोनेंट। अगर यहाँ से कोई भी वर्ड शुरू होता है, फॉर एग्जांपल ग्रेप्स, GRAPES, ग्रेप्स, तो हम एन ग्रेप्स बोलेंगे या ए ग्रेप्स बोलेंगे? ए ग्रेप्स। वाई? बिकॉज ग्रेप्स में फर्स्ट लेटर जी, और जी इज द कॉन्सोनेंट, नॉट एन वोवेल, तो हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? ए लगाएंगे, ए ग्रेप्स, ओके? एन नहीं आएगा क्योंकि वो कॉन्सोनेंट है। द आर्टिकल्स ए इज यूज्ड विथ वर्ड्स विच बिगिन विथ अ कॉन्सोनेंट। यस, ए, ई, आई, ओ, यू इज अ वोवेल, तो उसमें हम एन ऐड करेंगे, और बाकी सब जो लेटर्स है ए, ई, आई, ओ, यू के अलावा अल्फ़ाबेटिकल में, उसमें हम ए कॉन्सोनेंट, ओके, उसका यूज करेंगे। Read the following sentence. See, I had a glass of milk and an apple for breakfast. See, glass के पहले ए आया, तो ए आर्टिकल है, ठीक है? बट ए क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि ग्लास में जी है फर्स्ट लेटर, सो इट्स अ कॉन्सोनेंट, नॉट एन वोवेल। तो ए ग्लास, तो हमें ए के नीचे अंडरलाइन करनी होगी क्योंकि ये आर्टिकल है, और यहाँ पे एन आया, देखो एप्पल की पहले एन एप्पल, तो एन इज एन आर्टिकल, ओके? द आर्टिकल्स ए एंड एन आर यूज्ड टू रिफर टू अ सिंगल नाउन। गॉट इट? अभी हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे जो सबको मैम के साथ ही करनी है। सी, अंडरलाइन द आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अभी ये जो 5 सेंटेंस है स्टूडेंट्स, इसमें से आपको आर्टिकल्स में सिर्फ अंडरलाइन करनी है आर्टिकल्स को ढूंढ के। सो फर्स्ट सेंटेंस इज मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। यस, तो यहाँ पे आर्टिकल्स कौन सा है स्टूडेंट्स? मैरी हैड अ लिटिल लैम्प। सो ये ए इज आर्टिकल, ओके, यह आर्टिकल है, तो ए के नीचे सब अंडरलाइन करेंगे। मैम वापस रिपीट कर रहे हैं, ए के नीचे सब अंडरलाइन करेंगे। डन? नेक्स्ट, आई हैव एन ओल्ड वॉच विथ मी। तो इस सेंटेंस में आर्टिकल्स कौन सा है स्टूडेंट्स? जो नाउन के पहले आता हो, एन इज द आर्टिकल, तो हम एन के नीचे अंडरलाइन करेंगे। लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। यस, लिटिल जैक हॉर्नर सैट इन अ कॉर्नर। यहाँ पे ए रहा, देखो ए, एन और ध में ही हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि वो आर्टिकल्स है। ए के नीचे अंडरलाइन करो सब। डन? द स्टार इज लाइक अ डायमंड इन द स्काई। वेरी गुड। यहाँ पे 2 आर्टिकल्स है स्टूडेंट्स। फर्स्ट वन इज ए के नीचे अंडरलाइन करो, फिर द स्काई, तो यहाँ पे ध के नीचे भी अंडरलाइन आएगी, ओके? गुड। किंग पारी सो अ फ्रूट सेलर ऑन द रोड। वेरी गुड। यहाँ पे भी 2 आर्टिकल्स है, देखो अ फ्रूट, ए आया ना, ए इज द आर्टिकल, तो अंडरलाइन करो ए के नीचे, और एक ध के नीचे अंडरलाइन करो। द रोड, तो ध के नीचे अंडरलाइन करो। डन?
सो स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज पार्ट में 3 क्वेश्चंस किए और ये ग्रामर पार्ट में ये एक एक्सरसाइज की आर्टिकल्स की अंडरलाइन आर्टिकल्स. You have to complete this in your tulips. Okay? Thank you.